close here with this third topic, and let me open the time for any questions you may have over today's coverage. आज का हमारा जो अनुवाद था या कोर्स था वो यहीं पर खत्म होता है, लेकिन अब मैं आपको मौका दूंगा कि आप खुले सवाल कर सकते हैं। कहीं से भी इस कोर्स के ताल्लुक से आप सवाल कर सकते हैं, वो जरूर आपके जवाब आप तक पहुंचाएंगे। Yeah, we have one question from there. Yes. कुछ लोग हैं जो बाइबल में से कुछ चीजें चुन लेते हैं, कार्य स्कूल करते हैं, टेक्स्ट स्कूल करते हैं, 50 स्कूल करते हैं, भाषा करते हैं, वो बड़े पकड़ से कहते हैं हम जो भी निकालते हैं। He is asking that there are some people, they memorize some scripture like Psalm 91 or from Revelation, and they always reciting them and using that scripture to cast out the demons. So he's saying, is that correct method or? Okay. If someone has a ministry of deliverance given by the Lord, then the Lord will guide and enable such a person to cast out demons in Jesus' name. Okay. Yeah, can you translate that first? The actual question is, there are some people who memorize some Yes, I know the particular. question, but my answer is only halfway. Please translate it first. Okay. भाई कह रहे हैं कि कुछ जो लोग जिनको खुदा इस्तेमाल करता है इस खास मकसद के लिए, तो खुदा उन्हें गाइड करता रहता है, उनकी रहनुमाई करता रहता है कि वो किस तरह बदरूहों को निकालें। Now, if these people are truly enabled and called by God in this ministry, they may have different guidance from the Lord how to do the casting out of demons. There is no one method. तो इसलिए ऐसे लोग जो ये खिदमत करते हैं, खुदा उनको हर बार मुख्तलिफ तरीके से उनकी रहनुमाई करता है। उनके पास सिर्फ एक तरीका नहीं होता कि वो हर बार एक ही तरीके से बदरूहें निकालें, बल्कि खुदा हर बार मुख्तलिफ तरीके देता है, मुख्तलिफ तरीके से रहनुमाई करता है। What is crucial is that the person is truly authorized by Christ and he has faith to exercise the authority of Christ, and on that basis he may use different methods to cast out demons in the name of Jesus. इसमें सबसे ज्यादा अहम बात यह है, वो यह है कि क्या वो शख्स यीशु मसीह की तरफ से नामजद है, क्या यीशु मसीह ने उसको इख्तियार दिया है। अगर तो इख्तियार दिया है तो फिर खुदा उसको हर बार एक नया तरीका देगा बदरूहों को निकालने के लिए। If you look at the Gospels, what Jesus did to cast out demons, if you look at the book of Acts, to see what the apostles or even the evangelists did, they are not all exactly the same. अगर हम बाइबल मुकद्दस को देखें, खास तौर पर हम ईमाल की किताब को देखें, अगर हम रसूलों को देखें और दूसरे जो एवेंजलिस्ट थे, जो मुबश्शिर थे, उनको देखें, तो हर एक को खुदा ने मुख्तलिफ तरीके दिए, उन्होंने मुख्तलिफ तरीकों से बदरूहों को निकाला, ना कि एक तरीके से। So the crucial thing is not the how-to. The crucial thing is that the person is actually authorized by Christ, and the person is actually exercising the authority and ministry that Christ has given him or her, and is doing it in the name of Jesus. अहम बात यह है कि अहम बात यह नहीं कि कोई किस तरह बदरूहों को निकाल रहा है। अहम बात यह है कि वो खुदावंद की तरफ से नामजद है, खुदावंद की तरफ से उसको इख्तियार दिया गया है और वो ईमान में मजबूत है और वो खुदा के कलाम के तरीकाकार के जरिए बदरूहों को निकालता है। सबसे अहम ये है। Right, so in that sense, there is no one method of doing so. इसका मतलब यह है कि कोई एक तरीका नहीं, जो एक ही तरीका इस्तेमाल करता है वो रॉन्ग नंबर है।
All Yes. right, you have a question from that side. Okay. There's one. Yes, yes. Yeah, you can come. Greetings, sir. Yes, greetings. Yeah. First of all, I am very thankful to you for your initiative to teach us in Pakistan, and we are very pleased and blessing for you. Thank My you. question is, yeah, Yes. pleasure, sir. So my question is, some people do good things to glorify themselves. So in our this lesson, we can learn how do we doing good things and glorify not ourselves but glorify God. So Okay. what can we do for this things? We are leader now. And we teach. No, the challenge here lies in our own hearts. It is not something outward. It is Can you something just in our own heart. okay? Can you give Yeah. us just a moment? Yeah. Let me Okay, interpret for sure. all Yes. so they understand the question. बहन का सवाल यह है कि बहुत सारे लोग अच्छाई के काम करते हैं और बहुत सारे लोग इसलिए करते हैं ताकि वो अपनी फजीलाई हासिल कर सकें या अपने फख्र के लिए करते हैं। तो लीडर होने के नाते या पासवान होने के नाते या खिदमत गुजार होने के नाते हम किस तरह अच्छे काम कर सकते हैं जिसमें हमारी फजीलाई ना हो बल्कि खुदा की फजीलाई हो। हम इसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि जब भी हम अच्छे काम करते हैं तो हमारे अंदर जरूर कहीं ना कहीं गुरूर पैदा होता है, हम कहीं ना कहीं अपनी बढ़ोतरी चाहते हैं। तो किस तरह हम इसको बैलेंस कर सकते हैं? या Okay, thank you. Now, the challenge here lies in our own heart and mind and spirit. और इसका जो चैलेंज ये है, ये हमारे दिल और हमारे जहन के साथ है, ये हमारे अंदर ही इसका सारा आप चैलेंज कह सकते हैं इसको। Whether a person is doing it honestly from the heart to honor God is something that God can alone can see fully and clearly because it is in the heart, it's not outside. और अगर कोई बड़ी ईमानदारी और बड़ी संजीदगी के साथ खुदा को इज्जत देने के लिए काम करता है तो खुदा उसके दिल को देखता है। खुदा जानता है कि ये अपने लिए नहीं बल्कि मेरे लिए, मेरी इज्जत के लिए ये काम कर रहा है। So we must be very careful not to make false judgment ourselves. I lost you. Can you No, just we must be very careful not to falsely judge others because we cannot see into their heart. और इसलिए बड़ी एहतियात के साथ हमें दूसरों की अदालत नहीं करनी बल्कि हमें खुदा के उस काम को या उसके जो भलाई के काम है बड़ी ईमानदारी और संजीदगी के साथ इसको करना है। The best we can do if you are talking about assessing whether someone else is actually honoring the Lord or themselves is to go by the evidence, how the person speak, what the person say. But this is not infallible. We can make mistakes. किसी को जज करने के लिए, किसी की अदालत करने के लिए कि हम देख सके कि ये खुदा के लिए काम करता है या अपने लिए, अपनी फजीलाई के लिए काम करता है, तो हम इसको इस बात से जान सकते हैं, इसका सबूत है कि उस शख्स को हम जांचें कि वो किस तरह बोलता है, वो किस तरह काम करता है, लेकिन इसमें भी कभी-कभी हम धोखा पा सकते हैं। But the important thing for us to note that we are not called to judge. The Lord will be the judge. But of course, we must be careful and we must share with others or anyone who will listen that he or she needs to do it to honor the Lord and not themselves. और यहाँ पर सबसे ज्यादा यह कलाम में लिखा है कि खुदा ने हमें अदालत करने के लिए नहीं बुलाया बल्कि खुदा ने हमें दूसरों से मोहब्बत करने के लिए बुलाया है। लेकिन
फिर भी हम एक दूसरे से ये बात शेयर कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं कि फ्लाश शख्स ठीक काम नहीं कर रहा, या वो जो सारे काम हैं वो अपनी गुजारा के लिए करता है। हम आपस में जरूर इस बात की चर्चा कर सकते हैं, हम इस पर कर सकते हैं। But the most important area of application for this is on ourselves. और इस बात की इतलाक करने का सबसे बेहतरीन तरीकाकार यह है कि हम अपने दिल को जानें कि हम अपने दिल में कितने संजीदा हैं या कितने साफ हैं। Meaning to say, I may not always be able to tell correctly whether the other person is doing it rightly or wrongly from the heart. But if it is about me, I can tell. Am I doing it out of pride? Am I doing it to glorify myself? Or am I doing it to honor God and obey Him? Am I doing it to show His love to my fellow human being? I can know myself. हम दूसरों के दिल को हर वक्त नहीं जान सकते कि क्या वो खुदा के लिए काम कर रहे हैं या नहीं, लेकिन हम अपने दिल को जान सकते हैं क्या हम खुदा के लिए काम कर रहे हैं, क्या हम दूसरों से मोहब्बत रखते हैं, क्या हम अपने फख्र के लिए काम करते हैं। हम अपने दिल को हर वक्त जानते हैं। So the best application is we begin with ourselves. And let's make sure that we ourselves are doing right when we do these things to honor God and not ourselves. तो इसका सबसे बेहतरीन इतलाक ये है कि इसको हम अपने से शुरू करें, हम अपने दिल को जांचें और हम ये जानें कि हम खुदा की पुजीराई के लिए काम करते हैं या अपने फख्र के लिए। And if we ourselves are doing it right before God, we can teach others around us who are willing to listen to follow our example. But if we are not doing right, then we cannot do that. But if we are doing right, we can share this with others and be a good example to them. अगर हम अपने दिल में सच्चाई के साथ खुदा के साथ काम कर रहे हैं और खुदा की इज्जत के लिए कर रहे हैं, फिर हम दूसरों को सिखाने का इख्तियार रखते हैं, फिर हम दूसरों को बता सकते हैं, सिखा सकते हैं और फिर हम मिसाल बन सकते हैं। लेकिन अगर हम अपने दिल में सच्चाई के साथ काम नहीं कर रहे या हम अपने दिल में सच्चे नहीं, तो फिर ना तो हम मिसाल बन सकते हैं और ना ही हम दूसरों को सिखा सकते हैं। Okay, so I hope that helps you. Yeah, she's satisfied. Thank you. We have one more question. सर, my name is Pastor Denny और सर मैं उर्दू में बात करूँगा। बात यह है कि आपने 3 चीजें बयान की हैं। एक बयान की है गुनाह पर, दूसरी इब्लीस पर, और तीसरी आपने बताया दुनिया पर। सबसे ज्यादा हमें प्रॉब्लम दुनिया के साथ है। वो चीजें हैं हमारी रस्मात जो हमें डिस्टर्ब करती हैं। जैसे मैंने एक सवाल किया है आपके, बात यह है कि जब हम अपने लोगों को समझाते हैं कि ये बाइबल के मुताबिक जो हम काम कर रहे हैं ये ठीक नहीं है, ठीक है, इसके बावजूद वो काम करते हैं। और कुछ ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिसमें वो हमें इनवाइट भी नहीं करते। तो कहते हैं जी उन्होंने भाई उन्होंने बुलाना क्योंकि शराब तो बड़ी मना कर रहे हैं और 4 या 7 तो बहुत मना कर रहे हैं, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं वो। हमने ये काम करने हैं क्योंकि ये हमारे बाप दादा करते हैं, इसी तरह हमने इसको करना है। अगर हम उनको कहते हैं, ये बात चीजें बताते हैं, सिखाते हैं कि बाइबल के मुताबिक ये रहो, लेकिन उसकी वजह से वो हमें कहते हैं कि जिन्हें जी अपने आप को बहुत बड़ा समझना शुरू करते हैं, इन्होंने अपने आप को बड़ा आलम समझना शुरू कर दिया। किस तरह है कि हम किस तरह समझा सकते हैं और यहाँ पर रखते हैं इनके माशरे में इन्होंने क्या तजुर्बा हासिल किया है लोगों को मोटिवेट करके, और हमें ये कैसे बताएंगे कि आप किस तरह इसको करें और हमने किस तरह लोगों को गाइड करें। Thank you very much. So we have one question from brother Pastor Daniel. Yes. He said that you have explained that 3 dimensions of the enemy. Yes. But being a leader or being a lay Christian, the most essential and the most difficult part is to tackle the world, because
in this world we have so many customs. Like in our culture, we have certain customs and traditions that are against the Bible. So, being a pastor, whenever he teaches his congregation to avoid these customs and avoid these traditions, they don't listen to him because they say we are doing that customs and tradition from our forefathers, so we are not going to leave that. But that is actually against the Bible. So he's saying that how can we, teach them to avoid all these customs and all this tradition? And being in Singapore, how you experience your customs and tradition that were against the Bible, how you overcame and how you teach in your culture to avoid these customs. Okay, thank you. Now that is a very real challenge, and Singapore is very multicultural, so it's very, very many different customs or many different ethnic groups. ये हमारे लिए एक बड़ा हकीकी चैलेंज है। और सिंगापुर में लोग कहते हैं कि बहुत सारे कल्चर हैं, बहुत सारी अकवाम हैं, बहुत सारे कस्टम्स हैं, रसूमात हैं, और वहां पर तो ये और भी ज्यादा बड़ा चैलेंज है। You see, the real challenge is this: unless a person truly put Christ first in his or her life and actually understand and believe what the Bible teaches, that person will not change. सबसे बड़ा पहला चैलेंज यह है कि कोई शख्स मसीह को कबूल करे, और जब वो मसीह को कबूल कर ले तो वो इस बात को समझे कि मसीह को कबूल करने की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या है। जब वो मसीह की तालीम को अपने अंदर बसा लेता है तो वो शख्स जो है वो जुम्बश नहीं खाता, वो मसीह को अव्वल दर्जा देता है। So teaching it is necessary. तो इसलिए जो तालीम है वो बड़ी जरूरी है कि हम तालीम दें। The better we can show them how or why the different customs contradicts the teachings of the Bible, the better. और इसलिए ये बड़ा जरूरी है और ये बड़ा खास है कि हम लोगों को बताएं कि जो हमारे मुआशरे के रसूमात हैं, रवाज हैं, अगर वो बाइबल से तजाद करते हैं तो हमें किस तरह उनको छोड़ना है, हमें इनको तालीम देनी जरूरी, इस बात की तालीम देना हमें जरूरी है। Because part of the problem is they cannot understand why this custom contradicts the Bible. So they may need help to understand why this custom contradicts the Bible. और उनके लिए ये समझना मुश्किल होता है, उनको ये समझ नहीं आती कि किस तरह ये जो रस्म है, ये रिवाज है, ये बाइबल के खिलाफ है या बाइबल के मुखालिफ है। इसलिए हमें ये समझाना जरूरी है कि ये रस्म जो है, ये जो रिवाज है, ये किस तरह बाइबल के मुखालिफ है, ये अगेंस्ट काम करता है। But as your sharing shows, teaching is essential but not on its own sufficient. और इसलिए हमारी खिदमत में तालीम जो है ये बड़ी जरूरी है, लेकिन सिर्फ तालीम ही काफी नहीं है। What needs to happen if for someone to truly be ready to change is that you may need to disciple the person. और इसलिए जो शख्स वाकई सच्चे दिल से तब्दीली चाहता है और तब्दील होना चाहता है तो हमें फिर उनको शागिर्द बनाने की जरूरत है, हमें उनको शागिर्दियत के मरहले से गुजारने की जरूरत है। So you may have to select from those who listen to the teaching and can accept that it is true. You need to select those who are willing to take the next step and build their own walk and relationship with Christ. तो फिर आपको ऐसे लोगों का इंतखाब करने की जरूरत है जो आप इस तालीम को सुनने पर तैयार हैं, जो तब्दीली चाहते हैं। आप उनका इंतखाब कीजिए, उनको तैयार कीजिए, उनको शागिर्दियत के मरहले से गुजारें, और ताकि उनका मसीह के साथ जो ताल्लुक का रिश्ता है वो मजबूत होता चला जाए, वो गहरा होता चला जाए। So when a person reaches a point where he can see how his life and his practices contradicts the word of God, and he truly wants to put Christ first, that is the point of time where he will take.
और जब आप उसका इंतकार करते हैं, तालीम देते हैं, शरीयत के मरले से गुजारते हैं, तो वो आप आज चलते चलते इस मुकाम पर आ जाएगा कि जहां पर वो इस बात को समझ सके कि अब ये चीजें जो है वो बाइबल के खिलाफ हैं, मैं इसको नहीं करूंगा। वो इन चीजों की समझ हासिल करना शुरू कर देता है। So it comes from the inner transformation of the heart. If you just put rules and regulation, it will not work. But if the person himself or herself comes to the point of belief that this is against God, I don't want to do it, the change will come. अगर आप उन पर रूल्स एंड रेगुलेशन लागू करेंगे तो शायद कोई उस पर अमल ना कर पाए, लेकिन जब कोई इस मकाम पर पहुंच जाता है, जब हम उनको तालीम देते हैं, तो फिर उनके अंदर से बातनी तब्दीली निकलती है और वो फिर इस बात का इंतखाब करते हैं कि नहीं, मैं आइंदा से इस काम को नहीं करूंगा क्योंकि ये बाइबल मुकद्दस के खिलाफ है। So yes, it is a challenge for leaders and teachers, but that is the ministry God has called us to do. ये हमारे लिए लीडर्स के लिए बड़ा चैलेंज है, लेकिन हमें इसी काम के लिए तो बुलाया गया है कि हम इस चैलेंज को कबूल करें। Yes. Any other question? Yeah. We have a couple of more questions. Yes. अगर हम यीशु मसीह का वजन है तो बीमारियां, परेशानियां, लाचारियां, यीशु मसीह ने फरमाया कि मुझ पर ईमान लाओ तो तेरा घराना निजात पाएगा। लोग आज बीमारियों में शिफा के पीछे क्यों भाग? We have one very difficult question. The innocent but yet difficult question. Brother is saying, we are a body of Christ, but yet we are in sickness, we are in poverty, we need healing, we are after the healings. Why we get all these problems, troubles, all these sicknesses? Because we are the body of Christ, Okay. and yet we are experiences all these things. Okay. I think the point is this: you are touching on something that is very important in the sense that I think this is an area where many don't understand, as you rightly point out. The promises of God and how He works in our life is not on the basis of our immunity and exemption from what all human beings face. बाइबल मुकद्दस की जो तालीम है या बाइबल मुकद्दस या खुदा के जो वादे हैं वो हमारी कुव्वत मुदाफ़त या इस दुनिया में जो हमारा जिस्म है उसके मुताबिक काम नहीं करते। Nowhere does Jesus teach that if you become a Christian, you'll never be sick. You become a Christian, you'll never be poor. There's no such teaching anywhere in the whole Bible. कलाम में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा या यीशु मसीह ने कहीं भी ऐसा नहीं फरमाया कि जब तुम मसीही बन जाओगे तो तुम बीमार नहीं होगे या तुम पर बीमारी नहीं आएगी। कलाम मुकद्दस में ऐसा कहीं नहीं लिखा। But the promise of the Lord, which we actually covered in our study of Ephesians, is that He is with us always. लेकिन खुदा का वादा ये है जो हमारी जिंदगी में काम करता है, जिस पर हमारा ईमान है, वो ये है कि खुदा हर सिचुएशन में, हर हालात में हमारे साथ है। अगर हम बीमारी में भी चले जाएं, खुदा हमारे साथ है। When we repent of sin and receive Christ as Lord and God, He gives us the Holy Spirit to live in us. और जब हम इन मुश्किलात में जाते हैं, हम परेशानियों का शिकार होते हैं, जब हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, तो फिर रूह कुदुस हमें उठा खड़ा करता है, रूह कुदुस फिर हमें कुव्वत देता है। With the Holy Spirit living in us, we are in Christ and Christ is in us. और जब हम रूह कुदुस पर ईमान रखते हैं, जब रूह कुदुस हमें कुव्वत देता है, तो फिर इसका मतलब यह है कि हम मसीह में हैं और मसीह हम में।
and we have access to the Father. और फिर हमारी बाप तक रसाई है। So this is the point. Whatever we face in life, we have our God with us that the world does not have. Whether you face pain, whether you face suffering, whether you face persecution, turn to the Lord for His strength. Turn to the Lord for His guidance. Turn to the Lord for His transformation. Receive His peace, receive His joy, and you have His victory. और यही वो नुकता है कि जब हम इन तमाम मुश्किलात में चले जाते हैं तो खुदा हमारे साथ है। ये हमारे लिए वो काम है, हमारी वो बख्श जो दूसरों के लिए नहीं है। दूसरों की खुदा तक रसाई नहीं, लेकिन हमारी खुदा तक रसाई है। और जब हम टेम्पटेशंस में जाए, आजमाइशों में जाए, हम बीमारी में चले जाए, तो हम खुदा की तरफ रुख कर सकते हैं, हम खुदा की तरफ भाग सकते हैं जो दूसरे नहीं भाग सकते। इसलिए हम दुनिया से मुख्तलिफ हैं, क्योंकि खुदा हमारे साथ है और हमारी खुदा तक रसाई है। Alright, so let me put it in another way. What we have that the world does not have is the true God with us, full access to pray to Him and seek His help. And if we make use of that access and live by His word, by His enabling, He transforms us, He gives us His presence, He gives us His guidance, He gives us His power, and He will answer us whatever it is we face. And that is what the world does not have. और यही हमारे लिए बुनियादी बात है कि हमारे पास वो है जो दुनिया के पास नहीं। हमारे पास खुदा तक जाने की रसाई है। इसलिए अगर जब हम तरह तरह की परेशानियों का शिकार हों तो हम उससे दुआ कर सकते हैं, हम उसको पुकार सकते हैं और वो हमारी दुआओं को सुनता है। उन्होंने बड़ी खूबसूरत आपको बात कही कि कुछ भी है, अगर कोई भी दुआ हम करें तो वो हमारी दुआ को सुन लेता है, और ये सबसे बड़ी बात है। आमीन। Okay, maybe one last question. आखिरी सवाल। इस सवाल का भी इसलिए को जवाब आगे एक मिनट, ठीक है, आगे पहले इसको बताएं। अगर खुदा ये तरीका बताता है कि हर तरीके से कोई शख्स भी बदलुए निकाल सकता है, तो फिर मत्ती की इंजील के 7वें बाब की 22वें आयत में लिखा है, यहाँ पर लिखा है कि उस दिन बतेरे मुझसे कहेंगे, ऐ खुदावन, क्या हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की और तेरे नाम से बदरूहों को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से मौत से नहीं दिखाए। तो होता ये है कि हमारी कलीसियाओं में कुछ ऐसे शख्स होते हैं जो कोई ना कोई विरोध करके वो लोगों को अपने पीछे लगा लेते हैं और वो कहते हैं जी मैं हवाले भी दूंगा। वो कहते हैं जी जो कुछ हम करते हैं वो अनवर फजल भी नहीं कर सकता। मेरी कलीसिया में एक ऐसा शख्स है जो सिगरेट पीता है, जो और भी नशा करता होगा, गालियां भी देता है, लड़ाई झगड़े भी करता है और बपतिस्मे के भी खिलाफ है, पानी के बपतिस्मे के भी खिलाफ है। वो ये दावा करता है कि जो मैं करता हूँ वो और कोई नहीं कर सकता। तो उसने अपने घर में छोटा सा कमरा मखसूस किया जहाँ लोग उसके पास जाते हैं और वो दूर दूर से भी लोग उसके पास आते हैं। तो इस तरह वो कलीसिया के किसी भी निज़ाम को, किसी चर्च को भी नहीं मानता। तो वो कहता है कि मैं बदलुए निकालता हूँ। एक बहन है मार्गरेट, मैंने खुद देखा, एक दफा मैं किसी के साथ गया देखने के लिए कि ये क्या करती है, तो उसने एक कमरे में एक जगह मखसूस की जहां वो किसी को जो उसके पास जाता है बैठाती है और वो कहती है कि ये है आपके घर। तो आखिर माल की किताब में
वो गैबदान जिसने रूह थी उस लड़की के बारे में पढ़ा होगा। तो अगर ये खुदा ऐसे तरीके जो आपने जवाब दिया है, ये खुदा ही उसको ये देता है कि वो 91 ज़बूर पढ़कर 23 ज़बूर पढ़कर जादूगरों की तरह विरद करके वो लोगों को अपने पीछे लगा ले, तो बाइबल की जो बाकी तालीम है उसके वो कायल नहीं होते। मेरे टेबल पर किसी ने एक पेपर रखा जिस पर मैंने उस बहन की दुआ को पढ़ा और उसमें लिखा आ यीशु कर लिखा यीशु हर मर्ज की तू दुआ यीशु, ये बार बार आप पढ़े तो वो तो सारे निजाम को छोड़कर उसके पीछे जाते हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में जस्ट अ मोमेंट। असल में आप इसका मतलब है स्पेशल लोग ने इसका हवाला लेते हैं। अगर आप मुझे ज्यादा पूछना चाह रहे हैं कि पहली बात तो ये कि इसका बाइबल मुकद्दस में इसको स्पिरिट ऑफ डिविनेशन कहते हैं, जिसको ज्ञापदान शुरू कहते हैं। कलाम में लिखा है कि हमें रूहों का फर्क है, ये खुदा ने हमें अंडरस्टैंडिंग बख्शी है। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो एक ही तरीके से बुजुर्ग निकालता है वो खुदा के कलाम के मुताबिक है, क्योंकि खुदा मुख्तलिफ तरीकों से और मुख्तलिफ किस्म की रहनुमाई से काम करता है। तो इसलिए कुछ चीजें हम भी यानी कि खुदा ने हमें इतनी समझ बख्शी है कि हम उनका फर्क हाँ बिल्कुल ऐसे। और दूसरी बात ऐसे लोगों के लिए बहुत जल्द बुजुर्ग ही इनको कहना शुरू कर देंगे कि यीशु और क्रूस को तो हम जानते हैं, उनको बहुत जल्द ये जवाब आना शुरू हो जाएंगे। तो आप अपनी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग इस्तेमाल करें। मेरे चर्च में एक पादरी आकर के वसीराबाद से है, बहुत से मुल्कों में वो कहते हैं जो मुनादी करके आया, वो पंजाबी कहता है जिदी दुआ ना के दिल नहीं आती वो भी कोई पादरी है। नहीं ऐसा देखिए, ऐसा भी दावा हम नहीं कर सकते, ये खुदा के काम है, ये हमारे काम है। अगर ऐसे दावे हम करना शुरू कर दें तो इसका मतलब ये है कि हमने खुदा की यीशु की कुदरत को हमने अपने इख्तियार में कर दिया, तो यीशु हमारे इख्तियार में नहीं, उसकी कुदरत अपने तरीके से काम कर रही है। Actually the question was a bit irrelevant, so we were just trying to convince him. आपके पास so किसी के पास सवाल? So that's it, I think. Well, let's close in prayer, shall we? Let's pray then. Let's bow our heads before the Lord. Heavenly Father, we praise you and thank you for your loving kindness and grace to us all. We pray for everyone present and those that you use them to lead and minister, that they may receive you as truly Lord and God of their lives. And may what they receive from you through your word, through the book of Ephesians today, first and foremost be the strength and the guide in the lives of everyone who have heard it, and may they live it and pass it on, so that your word and your kingdom may multiply by your Spirit in their lives and through them to other lives and to the churches and ministries that you have given them. So in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, your blessing and enabling be with one and all. In Jesus' name, Amen. Okay, God's blessing. God's blessing. Bye-bye.